Okay, moving on to our next speaker, Mr. Krishan Sharma. He's the AVP and Business Development and Training at HDFC Asset Management Company Limited. So with a master's degree in economics and more than 20 years of experience, Mr. Sharma started his career with UTI. I mean, you know, an organization which we both share. I also worked with UTI for 7 years. And he's now moved on to HDFC. He's the national trainer for HDFC Asset Management Company and one of the pillars of HDFC Learning Academy. So the program is titled LEAP, okay, whose main objective is to impart professionals high quality training to all the business partners of HDFC in India. So far, he has already conducted more than 500 plus training sessions across the length and breadth of the country. And he has been hailed as one of the best trainers in the industry. So indeed, we are very privileged to have him today here amongst all of us. And he's going to share his last 20 years of experience and, you know, teach us the art of investing. So can you please join hands in welcoming Mr. Krishan Sharma? Thank you. Thank you, Gajendra. Thank you very much. Thank you, Azure team Azure. At the outset, the program conveys as a message to us that investment is a very simple process, but it's not easy. But when the program was designed with saying that it's science of investing and the art of investing, they have made it complex. What is it? Is it science or it is art? It's not that complex, friends. We'll try to understand this. Is it science or is it art? But what is more important is how to understand investments, be it science or art, so that I can, at the end of my journey as an investor, becomes a successful investor. That's the important thing. And for that, what matters most? What you want. आपका जो सवाल था, outperformance of one stock compared to the other stocks. I want to have a stock which gives us the maximum return possible, isn't it? That's our desire, deep desire into us. साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए. That's very important. What is the growth rate of India? That should be the target of your investments, nothing else. Don't try for outperformance too much. आप सड़क पे कभी तेज चलाने की कोशिश नहीं करते हैं. करते हैं आप? नहीं करते हैं. That's very important. We have to be a successful investor rather than the unsuccessful investor. और उसके लिए जरूरी क्या है? Art of investing. Understand the art behind this. When a person sells, the other person buys. Both of them, either of one is following science. So who is the person who is not following science? And if investing in science, each one of us will be successful here. Each one of us. But if I show you the data from US, 100 years of mutual fund history and 100 years of stock market history, you will see that every year, for the last 20 years, there's a firm called Dalbar Associates. They have done huge research on this subject. Every year, what they have observed it, and they have proved it also. They have proved it also. Come back to the slides. What is it? Look at this slide. What is the return of the markets, and what is the return earned by investors? If in US, investors earn less than what the markets have generated, what the markets have delivered, what the mutual funds have delivered, it's a very serious concern, friends. Most of us here in this hall have not earned what Indian mutual funds have delivered for the last 20 years, and that's the worry. What are the reasons behind it? This is what we need to understand. But before I start discussion on this, friends, let me have a disclaimer. What Surana Sahab has said, he could not bring the disclaimer, but I want to start with this disclaimer. And the disclaimer is, कभी कभी यूं ही मैं अपने जी को बहलाया करता हूं. कभी कभी यूं ही मैं अपने जी को बहलाया करता हूं, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया करता हूं. So please be careful. Please be careful. Everything take with a pinch of salt. We are here to discuss investments. When we talk investments, we end up talking economics and finance. And both finance and economics, friends, some of the people claim they are science. No, they are behavioral science. They are not pure science. What is difference between science and art? Science gives you the perfect cause and effect analysis. Do this and this will happen. There is only one outcome.
The outcome never varies. What is an art? Art is when there are alternative outcomes. And each of us, our investments, whatever we have done in our history, whatever we have done in the past, you must have observed that every investment what you have done has different outcomes, isn't it? There are always alternative outcomes. And there it becomes art, friends. What is the most important thing we need to understand in investing? I've been to Japan once. भगवान का कृपा है कि मुझे उन्होंने ये बात समझाई. What I observed in Japan, that there were no kids around, be it airport, be it at railway stations, be it malls, markets. I didn't see any kids there. I wanted to find out how come there are no kids. I asked one of the fund manager there, he was in our group from Sumi Trust, why in Japan I could not see kids? He says that Japanese society in the world, पूरे दुनिया में सबसे कम बच्चे इसी समाज में होते हैं, Japanese समाज. The birth rate there is 1.4, which is far less than the death rate, and it's a declining society. Every year, Japan is losing more than 1.5 lakh people, and the population is aging. The average age of Japan is 50 years, more than 50 years, average age of Japan, right? So there are no kids. I asked him, how come Japanese don't have kids? He told me that most of the young Japanese doesn't have good jobs. So if you ask any Japanese, any young Japanese, कि आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, तो वो बोलेगा मेरे बच्चे इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैंने शादी नहीं की. तो आपने शादी क्यों नहीं की, तो बोलेगा मेरे पास नौकरी नहीं है. So why Japanese don't have kids? Because they don't have jobs. I came back to India. I live in a very small city, friends. तो एयरपोर्ट से बाहर निकल के रेलवे स्टेशन गया. मुझे अपने ट्रेन का इंतजार करना था, आधे घंटे का समय था मेरे पास में. प्लेटफॉर्म पे घूमने लगा, घूमते घूमते दूर छोर पे निकल गया. वहाँ एक फैमिली बैठी थी, गरीब नजर आई. उनके पास से निकला तो वो मेरी ही मातृभाषा में बात कर रहे थे. तो I was attracted towards them. How come my own people are here in this place? I started talking to them. थोड़ी देर के बाद में हमारा बातचीत इनफॉर्मल हो गया. Can you hear me in the last? Audible? Not audible? Oh my goodness. Can I have that hand mic? Hello. Is it better now? Okay. तो जब बातचीत उनसे शुरू हुई तो मैंने उनसे पूछा ये बच्चे कौन हैं. उनके परिवार में 5 बच्चे थे, 5 kids. मैंने पूछा बच्चे कौन हैं. वो व्यक्ति बोलता है ये मेरे बच्चे हैं. मैंने उसको ध्यान से देखा, उसकी उम्र 35 साल होगी. हाउ कम एट दैट यंग एज यू हैव 5 kids? द एवरेज बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज 2.2. आजकल हिंदुस्तान के परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं. तो तुम्हारे 5 बच्चे क्यों हैं? आप जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? वो कहता है हुजूर मेरे 5 बच्चे इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है. दोस्तों क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आती है? दिस इज इकोनॉमिक्स. दोनों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक है, सॉल्यूशन अलग है. Isn't it? Both of them don't have jobs, but they have different solutions. And this is called temperament. Investment is nothing but temperament. इसलिए एक बात याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट में, कभी भी पड़ोसी को और दोस्त को कॉपी मत करना. वो अलग हैं, आप अलग हैं. उसका टेम्परामेंट अलग है, आपका टेम्परामेंट अलग है. राकेश झुनझुनवाला ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर्स खरीद के आपको रिटर्न नहीं मिल सकता. एक ही कंपनी में कमाने वाला होता है, खोने वाला होता है. कंपनी रिटर्न नहीं देती है, आपका टेम्परामेंट आपको रिटर्न देता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. The second thing we need to understand in economics is, since it is a behavioral science, what is the best thing? The best thing is don't watch TV on a daily basis. Watching TV on a daily basis is injurious to your wealth. And more so for the last few years. Take the case of Brexit, take the case of Trump. Every time, take the case of forecast of TV. Why it's happening? Reasons are abundant. What is the reasons behind it? We'll try to understand this. But any one of you, if you need to understand why watching TV is bad for your wealth, very simple. TV was invented in 1925. Before that, there was a saying in England, new news is a good news. People, those who don't get news are better investors. And this is proved by a psychologist named Paul Anderson. He was the Dean of Psychology Department in MIT between 1985 and 1989. Several research he have done with the different groups of
students of MBA. MIT is the most famous school of the world. 84 students of MIT has got Nobel Prize till date. The smartest of students read there, right? And what he discovered in 4 years, he has divided the team into two teams, the MBA students into two groups, Group A and Group B. He exposed Group A to the news and television, and he prevented news to reach Group B. And what he has observed that in 4 years, several groups he has changed. Always that group which was not exposed to news were better investors. Right? Why I am saying this, we'll discuss in detail. But first, at the outset, friends, to understand this subject today, you have to promise me two things today. Number one, don't make this meeting a monologue. प्रवचन नहीं, हम बात करेंगे. करेंगे? अब बात करेंगे? और दूसरा, ईमानदारी से करेंगे. तैयार है? मुश्किल काम है. Right? Okay. We'll talk and we'll talk honestly. Please tell me, when you have come here, Team Azhar के invitation पे, thanks to you, आप सब लोगों ने उनके निमंत्रण का सम्मान रखा and you are here. तो आप यहाँ पर आए हैं, आपने मुझे कुछ दिया है क्या? Anything you have given to me? What you have given to me? Something very precious, time. Do you value your time? Yes? Sure? Okay. We value our money as well. We are here talking about money. Money is very valuable thing in our life. I want to have your opinion. What you value more, your time or your money? ज़्यादा कीमती क्या है आपकी ज़िंदगी में? आपका पैसा कि आपका समय? समय? लॉक करो? पक्का? ऑनेस्टली? ईमानदारी से? जब टीम अजहर ने आपको बुलाया, उस वक्त अगर आपसे ये कहते कि HDFC से कृष्ण आए हैं, सीट के हिसाब से 500 से 1000 रुपए का टिकट है, तो कितने लोग आते? कितने लोग आते बताइए? कोई भी नहीं आता. अब बताइए ज़्यादा कीमती क्या है? पैसा के टाइम? टाइम आपने दे दिया, लेकिन पैसा नहीं देते. And that's the problem, friends. I will talk about several psychologists here because psychology is an art. See, friends, the problem is very simple. There's a psychologist called Dan Ariely. He is again a psychological professor of psychology in Stanford University, US. He has written a wonderful book, Predictably Irrational. In that book, he says that, honestly speaking, humans are dishonest. Right? लेकिन बेईमानी दूसरों से करेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे. तो हम बेईमानी दूसरों से नहीं करते हैं. सारा दिन किससे करते हैं? खुद से करते हैं. What is the first thing we need to understand in investments? Very simple. What I want to do with this money. Simple. What I want to do with this money. If you have not asked these questions to yourself, you cannot understand what right investments is and how to do right investments. Why I am saying so? Very simple. If I ask one very simple question, but don't get confused, why you want money? To use or to accumulate? आपको पैसा इस्तेमाल करने के लिए चाहिए कि संग्रह करने के लिए चाहिए? बहुत सोच के जवाब दीजिएगा. संग्रह करके क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे आप? ओके. जितने भी पीपीएफ अकाउंट हिंदुस्तान में हैं, जितने भी पीपीएफ अकाउंट हिंदुस्तान में हैं, उसमें पैसा डाला जाता है फिर निकाला जाता है. जितने भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला गया है, it has been observed that 73% केसेस में पैसा नॉमिनी ने निकाला. इसका मतलब समझाइए. अब क्या कहेंगे आप? And that's the problem. उनको मालूम ही नहीं था कि पैसे का क्या करना है. और अगर पहले से मालूम होता कि ये पैसा मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो पीपीएफ की जगह ईएलएसएस में डाला होता. पीपीएफ में 10,000 के 40,000 बने थे, ईएलएसएस में 10,000 के 5 लाख बन जाते. दोस्तों, वो क्यों नहीं बने? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि पैसे का करना क्या है. The very first caution in investments, what you want to do with your money. And this is where it is the critical role of decision making. आप decision कैसे लेते हैं? आप फैसला कैसे लेते हैं? Are you a rational investor? Right? That rationality is the art of investments. What is rationality? Very important. There is some research has been done, again by the same psychologist, Dan Ariely. What research he has done? Experiment rather he has done.
he went to a restaurant in US और उस रेस्टोरेंट में उसने उस दिन क्या किया, जहाँ पर पिज़्ज़ा मिलता था 500 रुपये का, द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा वॉज ₹500। उसने क्या किया, मेन्यू कार्ड चेंज कर दिया। और मेन्यू कार्ड चेंज करके क्या किया, मैं आपको न्यूज़ बाद में देता हूँ। And that very day, when everybody was coming to restaurant, he was asking question to them, why you have come to the restaurant? You don't have kitchen at home? The families were saying, no, we have kitchen at home. Then why you have come to this restaurant? The families कहती है, we come here to enjoy the evening, have a quality life with the family. तो सबका जवाब क्या था? Why they have come to the restaurant? To enjoy the evening, to enjoy the food, right? ये उनका जवाब था। और ये जवाब लेने के बाद में डेन इयरली उनको मेन्यू कार्ड देता है। In that menu card, what he has done, he has changed the price of pizza from 500 rupees, I'm making it rupees, 500 rupees per pizza to 50 rupees per bite. पिज़्ज़ा की कीमत क्या हो गई? 500 रुपये पर पिज़्ज़ा की जगह 50 रुपये पर बाइट। अंदाज लगाइए उन्होंने पिज़्ज़ा कैसे खाया होगा। सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए उन्होंने पिज़्ज़ा कैसे खाया होगा। बिग बाइट्स, ग्रेट। देखिए आपको मालूम है क्योंकि आप भी यही करते। एंड दिस इज द रीजन वी वॉच टीवी, कि कुछ खबर मिलेगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज वॉट यू हैव डन ना, वॉट दे हैव डन, वॉट एवरी कस्टमर रेस्टोरेंट हैज डन। उसने बड़े बड़े बाइट्स लिए, क्योंकि बड़े बाइट लेने में क्या होता है, बिल छोटा आता है, बिल छोटा आता है। बहुत मज़ेदार बात है। आपको लगता है यू आर लॉजिकल, यू आर रैशनल, आपने अक्लमंदी से काम किया है और आपने अपना बिल छोटा कर दिया। पर जैसे ही वो खाना खा के बाहर निकलता है, डेन इयरली के लोग उससे सवाल पूछते हैं, क्या भोजन करने में आनंद आया? डिड यू एंजॉय द मील? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उनका सवाल था, यहाँ पर आए क्यों थे? कुछ बात समझ में आई दोस्तों? कुछ बात समझ में आई? This is called, their goal was to enjoy the evening, but they could not enjoy the evening to save money. This is called difference between news-based portfolio and goal-based portfolio. You can become good investor by following goal-based portfolio, not the news-based portfolio. आप पोर्टफोलियो बनाते वक्त गोल सामने रखते हैं, पर न्यूज़ के साथ उसको बदलते जाते हैं। And this is the reason we say watching TV is injurious to your wealth, friends. Very simple. एक आपको फोटो में और दिखाता हूँ, एक तरीके से आपको बात दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। How dangerous the news are. I hope I brought that photograph. Yes, this is the human element in the system in the investment market. आप एक नेशनल सेंचुरी में, कान्हा मध्य प्रदेश, बड़ी सुंदर जगह है, आप घूमने जाते हैं और अचानक से आप क्या देखते हैं कि झाड़ी में से एक हिरण निकलता है और हिरण के पीछे शेर है, हिरण के पीछे शेर है। और आप कल्पना करते हैं कि वो शेर उस हिरण को मारने वाला है, आपके सामने अभी खून से भर जाएगा, लथपथ हो जाएगा, तड़फता हुआ नजर आएगा। मुझे आप बताइए, इसमें से आपको दया किस पे आ रही है? किस पे दया आ रही है? हिरण पे दया आ रही है। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर बचाइए, इस हिरण को मरने मत दीजिए। ईश्वर आपकी बात सुनता है और शेर हिरण को पकड़ नहीं पाता है। ईश्वर बहुत बिजी है, ये फैसला करके भूल जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और 10 दिन तक शेर हिरण को पकड़ नहीं पाता है। और 10 दिन के बाद आपके पास में खबर आती है। खबर क्या आती है कि खाना नहीं मिलने की वजह से शेर के बच्चे मर गए। अभी दया किस पे आ रही है? सुराना साहब क्या बात कर रहे थे? टाइम फ्रेम एंड माइंड फ्रेम। मैंने टाइम फ्रेम माइंड फ्रेम चेंज कर दिया और आपका फैसला बदल गया, राइट? I'll give you wonderful examples to understand this. What is the difference between time frame and mind frame? What is the role of time in investments? How the plethora of news flows, जो flows जो आपके पास में आते रहते हैं, how they disturb you, how they deviate you from your goal-based portfolios, right, friends? पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है, we need to understand 2 very simple things. If you want to understand investment in a very simple way, and this is from where the money comes. What is the source of how society generates wealth? What is the source of wealth in the society? Because at the end of the day, we want to understand the wealth creation.
So to understand wealth creation, we need to understand from where the wealth comes. So Rana was talking about ROI, growth prospects. Growth किसमें ज़्यादा आएगा? So what is growth prospects? Let us understand the growth prospects. What is growth? What is income? What is rising income? From where the income comes? Income comes through a very simple process, and this process is called spending. Look at this. If you want to increase your income, it means that you have to increase the spending of others. It's a double entry system. All your income is always spending of others. So if you spend more, somebody earns more. और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके और आपके परिवार के खर्चे अगले 5 साल में बढ़ेंगे कि कम होंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है, और आपके खर्चे बढ़ेंगे तो किसी न किसी की इनकम बढ़ेगी. सिंपल. तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि सोर्स में, हिंदुस्तान में सोर्स ऑफ वेल्थ क्या होगा. आई विल कम टू लेटर पार्ट. पहले मैं बात करूंगा आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, हाउ यू मैनेज दिस वेल्थ. Whatever wealth India will create for us, we don't create wealth, India creates wealth for us. Whatever wealth India will create for us, how we are going to manage it. And this is called how you use your wealth, how you ensure that how you spend your wealth and how you save your wealth. Right? This is what mutual funds have delivered of India, how they have managed wealth for you. This is a chart from CRISIL, and CRISIL chart says that, you can see it on the net also. Every 3 months this chart comes. They have started doing it from the April 1, 1997. And according to CRISIL, if you have invested 1,000 rupees in mutual funds in April 1997, the value of that is 43,000 rupees. So 1,000 has become 43,000 rupees. And there are 108 equity schemes in this chart. 108 equity schemes which were there 20 years ago. In 20 years, 1,000 rupees has become 43,000 rupees. Such a wonderful performance. But let me give you a sad chapter of this story. And the sad chapter of this story is only 2% of investors have earned this income. कितने लोगों ने पैसा कमाया है? 2%. क्यों? क्योंकि बाकी लोगों ने यात्रा पूरी ही नहीं की. They did not survive in the scheme. उसके reasons क्या हैं? Why they could not manage their wealth? What is the reason? And this is what has happened in US as well. This is the chart I wanted to show you about US. Look at the second chart. This green is the money generated by US markets since 1989, and the blue is the money earned by investors by investing in the same market. Look at the underperformance of investors. तो हम ओवर परफॉर्मेंस की तो बात छोड़ दीजिए, पहले जितना उतना कमा लें हम. बाद में बात करेंगे स्टॉक कौन सा अच्छा और कौन सा खराब है. जितना मार्केट देता है, जितना इंडेक्स देता है, उतना तो कमाएं. हम उतना भी नहीं कमाते हैं दोस्तों, राइट? और उतना हम क्यों नहीं कमाते हैं? वाई वी फेल to generate, to earn that wealth which has been generated by the markets? Very simple. Look at these 3-4 questions, and you have to tell me what makes you happiest. You earn 10,000 rupees in a contest. आपको 10,000 रुपये मिलते हैं किसी कॉन्टेस्ट में, कैसा लगेगा? You feel happy or not? अच्छा लगेगा. एक रिश्तेदार ने नोटबंदी के बाद में 10,000 नकद दिए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा दोस्तों? अच्छा लगेगा. तो आपने लॉटरी में 10,000 रुपये जीते, अच्छा लगा. आपने 10,000 रुपये रिश्तेदार ने दिए, अच्छा लगा. आपके 10,000 रुपये खो गए, कैसा लगेगा? और खोए हुए पैसे आपको वापस मिल गए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा फ्रेंड्स? तो आपको 3 10,000 रुपये मैं दे रहा हूं. एक जो आपको लॉटरी में मिले, एक जो रिश्तेदार ने दिए, एक जो आपके 10,000 तक खो गए और आपको वापस मिल गए. आउट ऑफ दिस 3, विच सिचुएशन मेक्स यू हैप्पीएस्ट? या आपको तीनों में बराबर खुशी होती है? द सी. बेड़ा गर्क, यही प्रॉब्लम है दोस्तों. चलिए, आप कहते हैं मुझे सी में ज़्यादा खुशी होती है. अब आप कल बाजार में जाके सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदते वक्त दुकानदार को बोलते हैं ये 10,000 रुपये रिश्तेदार ने दिए, ये 10,000 रुपये लॉटरी से निकले, ये 10,000 रुपये वो हैं जो कि खो गए थे, मुझे वापस मिले. इसमें मुझे खुशी ज़्यादा हुई थी, प्रसन्नता ज़्यादा हुई थी, इसलिए हे दुकानदार, इस 10,000 का मुझे सामान ज़्यादा मिलना चाहिए. तो वो देगा? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है. तो खुशी सेम क्यों नहीं है? तो खुशी सेम क्यों नहीं है? And this is the greatest discovery from one of the psychologists, Richard Thaler, and he called it mental accounting. Mental accounting. आप जानते हैं इससे क्या होता है? इससे सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है.
सबसे बड़ा खतरा इन्वेस्टमेंट्स में पैदा होता है। और वो खतरा क्या है? आपने 2 इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी, दोनों ही 50 रुपये में किए, दोनों ही 50 रुपये में किए। आफ्टर सम टाइम यू नीड सम मनी, आप पैसा निकालना चाहते हैं, ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, मुझे पैसा निकालना है भैया, मुझे भाव बताओ आज का। वो भाव बताता है, इन्वेस्टमेंट ए का भाव है 25 रुपये, तो क्या हो गया? नुकसान। कितने रुपए का? 25 रुपये का। और वो आप पूछते हैं इन्वेस्टमेंट बी की कीमत बता, डरते डरते पूछते हैं, वो पूछता है इन्वेस्टमेंट की कीमत है 75 रुपये, क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ए में नुकसान हो रहा है 25 रुपये का, बी में प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का। उसका भाव है 25 रुपये, इसका भाव है 75 रुपये। आपको पैसे की ज़रूरत है, दोनों में से कोई भी एक को बेच के आपका काम पूरा हो सकता है। ए को बेचने से भी आपका ज़रूरत पूरी हो जाएगी और बी को बेचने से भी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आप किसको बेचेंगे? ए जिसमें नुकसान है या बी जिसमें फ़ायदा है? किसको बेचेंगे? बी को बेचेंगे। कितनी ज़बरदस्त बात कही। इसीलिए मुझे चिंता हुई जब आपने सी को चुना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक लायक एक नालायक। वो घर से किसको निकालता है? किसको निकालता है? नालायक को। और इन्वेस्टमेंट में आपने किसको निकाल दिया और किसको पास में रख लिया? इसीलिए इन्फोसिस आपके पास में नहीं होता, सिल्वर लाइन होता है। देखा आपने? सिंपल। मेंटल अकाउंटिंग और डीमोनेटाइजेशन मेंटल अकाउंटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। Demonetization will change your life forever. Will change your life forever. Can you raise your hands? Anybody here who has shifted part of their expenses from cash to digital? How many of you? My goodness, so many of you. आप मेरे हिंदुस्तान के फ्यूचर हो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेंटल अकाउंटिंग आपसे क्या करवाएगा, जिसने भी कैश को छोड़ा है और जो कैश की जगह डिजिटल गया है, उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। जिसके पास कार्ड होता है उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं। Right? I will talk on demonetization because demonetization is a very big event and this is going to change forever India. And this change you are not going to observe on a daily basis. It is like growing grass. The impact you will see only after 3 years. लेकिन जिसने भी हाथ खड़े किए हैं, आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त तरीके से बदलने वाली है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। Right? And that will be good for India. That will be good for India. Right? Understand 3 important things in investments. To understand the art of investing, understand 3 important things. There is a role of time. There is a role of time. अगर आपने टाइम नहीं दिया इन्वेस्टमेंट को तो कुछ नहीं होगा दोस्तों. Understand the role of time. आप टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? I'll try to understand this. The second is make odds in your favor. It is not a pure science. You do this and you will get that. It never happens. ऐसा नहीं होता है कि आप ये करेंगे और यही आपके साथ में होगा. तो आपको करना क्या है? You have to always ensure that odds in your favor. कि इस इन्वेस्टमेंट को करने से आपको फायदा होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. आप ये काम कैसे करेंगे? We'll try to understand that as well. And focus on the process is not outcome. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बहुत ज़रूरी है. कर्म करें इन्वेस्टमेंट में, फल की चिंता ना करें. फल की चिंता की नहीं कि गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों. बहुत ज़रूरी है ये. Right? All 3 things one by one will take. Let us see first this. I'll play a game with you, right? The game is very simple. I have a coin, fair coin, not Sholay coin. One side head and one side tail. So what are the chances if I flip the coin, you will get head? 50%. Chances of tail? 50%. So I flip a coin and I promise that for head, I'll give you 100 rupees. And if it is tail, I'll take 100 rupees. How many of you will play this game? कोई जुआरे नहीं है यहाँ पे. There is no difference between investing and gambling. बहुत कम डिफरेंस है दोस्तों. राइट? कोई भी नहीं खेलेगा? None of you? Great. बहुत अच्छा लगा क्योंकि जुआ बुरी आदत है ना? जुआ खेलना बुरी बात है. Okay, I change conditions. I will toss a coin. If it is head, I'll give you 200 rupees. And if it is tail, I'll take only 100 rupees. अब लोग कितने खेलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 लोग खेल रहे हैं. चलिए, अभी भी मज़ा नहीं आया. थोड़ा चेंज और करता हूँ. मैं सिक्का उछालूंगा, हेड आ गया तो आपको 500 रुपये दूंगा और टेल आया तो 100 ही रुपये लूंगा. अब बताइए कितना लोग खेलेंगे?
सब लोग खेलेंगे। सुराना साहब कितना ही समझा दीजिए, वैल्यूएशन समझ में नहीं आएगी। सब बढ़ते मार्केट के लोग हैं ये। जैसे जैसे मैं कीमत बढ़ा रहा हूं, आप खेलने के लिए तैयार हैं। और अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा था, कर्म कीजिए फल मत देखिए। और आपने सारा फैसला कैसे लिया है, फल देख के लिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से। पहला खेल हेड, यू गेन 100 रुपीज, यू लूज 100 रुपीज। टेल मी, आप ये खेल क्यों नहीं खेले थे? क्यों क्यों नहीं खेले थे? किस बात का डर था जो आप ये खेल नहीं खेले? मेरे को 100 रुपए का नुकसान होगा और मुझे 100 रुपए नुकसान होने की संभावना कितनी है? 50%। अब आखिरी खेल पे आइए। आखिरी खेल आप क्यों खेल रहे हैं? यहां पर नुकसान होने की संभावना कितनी है? तो फिर क्यों खेल रहे हैं? पहला वाला जुआ था, आखिरी वाला जुआ है कि नहीं है? तो जुआ खेलना अच्छी बात हो गई। अब क्यों खेल रहे हैं? देखिए क्या हो रहा है आपके साथ में। पहले वाले में आप डर रहे हैं, फियर, मार्केट ऐसे ही बनता है। आखिरी वाले में आप ग्रीडी हो गए हैं, लालच, मुझे 500 रुपए चाहिए। नुकसान होने की संभावनाएं उतनी की उतनी है। मजेदार बात सुनिएगा दोस्तों, क्या हो रहा है यहां पे, आपकी रिस्क एपिटाइट बदलती जा रही है। पहले वाले में आप रिस्क एवर्स हैं, दूसरे वाले में आप रिस्क के बारे में सोचने लगे, और तीसरे वाले में आप रिस्क टॉलरेंट हो गए। इजंट इट? जबकि तीनों में ही आपको पैसा खोने की संभावनाएं उतनी ही हैं। अगर आप 30,000 के बाजार पे आज निवेश नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, डायरी पे लिख लीजिए, जिस दिन ये 35,000 हो जाएगा आप जरूर कर देंगे, जब वैल्यूएशन और भी ज़्यादा होगा। दूसरे खेल को ध्यान से देखिए। मैं हेड पर आपको 200 रुपये दूंगा और टेल पे आपसे 100 रुपये लूंगा। ये जुआ है कि नहीं है? पक्का? चलिए इसको इन्वेस्टमेंट बनाएं। शैल वी कन्वर्ट दिस गैम्बलिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स? वेरी सिंपल, डू इट 100 टाइम्स। डू इट 100 टाइम्स। क्या आप पैसा खो सकते हैं? द गैम्बलिंग हैज बिकम इन्वेस्टमेंट्स। तो मार्केट में नुकसान किसको होता है? जो कभी कभी आता है, उसको कभी नहीं होता है जो हमेशा आता है। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट यू नीड टू डू इज, मैंने आपसे क्या कहा था, 2 चीजें 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन आउटकम, रोल ऑफ टाइम एंड द मेक्स ऑड्स इन योर फेवर। If you play this game 1 times, odds are not in your favor. But if you play this 100 times, odds are in your favor. Listen it very carefully. Investing is not an endeavor to increase the outcome. Investing एक ऐसी कोशिश नहीं है जहां पर आप रिटर्न्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Investment is an endeavor where you increase, where you attempt to increase the chances of returns. आपको रिवार्ड नहीं बढ़ाना है, आपको रिवार्ड के चांसेस बढ़ाने हैं। और जब आप वो खेल खेले तो आप चांसेस नहीं बढ़ा रहे थे, आप रिटर्न्स बढ़ा रहे थे। और कोई भी दुनिया में धोखा देने वाला आदमी आपके इस प्रवृत्ति का फायदा उठा सकता है। वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट? दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। बस, और आपको इसके अलावा दोस्तों कुछ सोचना नहीं है। रिस्क एवर्स, रिस्क कॉन्शियसनेस एंड रिस्क टॉलरेंट। आपका रिस्क एपिटाइट आपको खुद को मालूम नहीं है दोस्तों, एंड दैट्स बिग वरी, राइट? रोल ऑफ टाइम का एक और सवाल देखिए मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखिएगा और बहुत जल्दी से चुनिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी से चुनिएगा। देयर आर 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, आई विल गिव यू 100 रुपीज टुडे आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, राइट? दिस इज ऑप्शन नंबर 1, आई विल गिव यू 100 रुपीज आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर, और आई विल गिव यू 101 रुपीज आफ्टर 7 days। आप क्या लेना पसंद करेंगे? क्या लेंगे? 100 रुपीज, ऑप्शन 1। How many of you will take option 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये कुछ लोग जो हाथ बाद में खड़ा करते हैं ना, ये बड़ी चिंता में डाल रहे हैं मेरे को। ये आपने जो हाथ बाद में खड़े किए हैं ना, उनके लिए कहानी सुनाता हूं मैं। Somebody discussed about herd mentality. हाँ, सप्रे साहब ने और सुराना साहब ने भी बात की थी, हर्ड मेंटलिटी। देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश in 1950s and 1940s. He has discovered something very great, peer pressure. Peer pressure.
मुंबई की किसी टॉल बिल्डिंग में जाइए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाइए, लिफ्ट में जाइए आप, और लिफ्ट में सोचिए कि मिरर लगे हैं, वेल इल्यूमिनेटेड लिफ्ट है, ऑल वॉल्स मिरर्स आर देयर, यू एंटर इनटू लिफ्ट एंड फ्रॉम 0 floor you go to 28 floor and there is nobody else in the lift, you are the only person in the lift, well illuminated, बहुत रोशनी है, सब जगह आईने लगे हैं। 28वें माले तक जाने में 28 सेकंड लगेंगे, आप क्या करेंगे 28 सेकंड तक, बताइए क्या करेंगे आप? याद कीजिए आप क्या करते हैं। आप मिरर के सामने ऐसे खड़े होते हैं, हर तरफ से खुद को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जेब से कंगा निकालते हैं, कंघी करते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं और ईश्वर को कहते हैं कितना खूबसूरत बनाया है मुझे, राइट। और अचानक से कोई लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो हड़बड़ा जाते हैं आप, होता है कि नहीं? से नंबर 1, से नंबर 2, दूसरे दिन आप लिफ्ट में आते हैं, उसी लिफ्ट में जाते हैं, उतनी ही रोशनी है, वैसे ही आईने हैं, पर जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं लिफ्ट में पहले से ही 6 लोग खड़े हैं और सब 6 लोग दीवार के सहारे खड़े हैं। अब आपको खड़े होने के लिए बीच में जगह मिलती है, आप कैसे खड़े होते हैं? होते हैं ऐसे खड़े। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर, दूसरों का दबाव। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर बनना है तो काम कीजिएगा, लिफ्ट में जब लोग खड़े हो उस वक्त लोगों को बोलिएगा भाई साहब जरा हटना, मुझे कंघी करनी है। अगर आप कर पाए तभी इक्विटी में कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दोस्त बोलेगा कहां पैसा रखा है, बीवी बोलेगी कहां पैसा रखा है, पिताजी बोलेंगे कहां पैसा रखा है, सब तो पैसा निकाल रहे, तुम डाल रहे, तुम ही अक्लमंद हो क्या दुनिया में? प्रेशर्स। ये हाथ बाद में खड़ा क्यों किया? कहीं मेरा गलत फैसला तो नहीं है? 4 लोग खड़ा कर लें फिर मैं खड़ा करता हूं। डर निकालना होगा दोस्तों, डर निकालना होगा, और डर निकलता है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट आता है ज्ञान से। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ट्रस्ट मुझे क्यों होना चाहिए। और मेरी एक दूसरी चिंता और हो गई जब आपने 100 रुपया चुना। कैन एनीबडी इन दिस क्राउड एक्सप्लेन मी in a pure scientific mathematical financial terms how 100 rupees taking today is better than taking 101 after 7 days? क्यों? आपने 100 रुपया चुना है तो इसका मतलब क्या हुआ? Opting for 100 rupees today is far superior than opting for 101 after 7 days, because as humans we believe that we are rational, we are logical, we are intelligent. तो मुझे समझाइए कि 100 रुपया आज लेना कैसे ज़्यादा अक्लमंदी है 101 के मुकाबले? Pardon? A bird in hand is worth 2 in the bush. बहुत बढ़िया साहब ने की। आपके पास डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं आपके पास? एफडीज हैं आपके पास? एफडी किया है कभी? एफडी में क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं, एक चिड़िया देते हैं, 7 साल के बाद 2 चिड़िया लेके आते हैं, यही करते हैं ना? A bird in hand is worth 2 in the, तो आप एफडी में क्या कर रहे हैं? जो हाथ में चिड़िया वही तो बैंक को दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं भैया 8 साल के बाद मुझे 2 दे देना। If a bird in hand is worth 2 in the bush, आप में से कोई यहां नहीं आता दोस्तों, आप में से यहां कोई भी नहीं आता। मुझे समझाइए फाइनेंशियली how 100 rupees in your hand today is better than 101 after 7 days? Simple question. Yes, sir. Can I answer? Yes, who's there? Yeah, here. Okay, Yeah, yes, fine. madam. Probably a week I will get 1% return, so in a month I will count as a 4% return on my principal. So that's No, how 100 rupees taking today is better than 101 after 7 days? You're giving me 1 rupee extra, right? 1 after rupees the week? extra? Yeah. Okay. So that's 1% a week. No, you are taking 100 rupees today, na? So how taking 100 rupees today is better than 101 after 7 days? That's the question right, is. right? 100 rupees anyways I'm going to get it. That's Okay, my principal you will get 100 amount. rupees. Yeah. So how taking 100 rupees today is better than 101 after 7 days? This is It's the a question. short amount which you are going to give me without any gambling, right? 101 rupees has a guarantee. Is that clarity I have? मुझे और ज़्यादा चिंता हो गई अब तो गारंटी सुन के। मैडम आई गेटिंग कंफ्यूज्ड। मैडम को शायद सवाल समझ में नहीं आया। मुझे आप बताइए 100 रुपया आज लेना 101 से बेहतर क्यों है? क्यों है? खुल के बात कीजिए साहब, खुल के। हाँ, ट्रस्टी नहीं है, बताइए। ट्रस्टी नहीं है। एक बात बताएंगे आप, राम और सीता के रिश्ते कब बिगड़े? द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, वो रिश्ता कब बिगड़ा? जब राम ने सीता को बोला अग्नि परीक्षा दे दो। दोस्तों ट्रस्ट आपको करना है, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है,
आप पहले वाला ऑप्शन में मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी मैं आपको बोल रहा हूं आफ्टर मीटिंग इज ओवर, मैं अभी नहीं दे रहा हूं आपको, मैं अभी नहीं दे रहा हूं आपको। आप जानते हैं आप 100 रुपये अभी क्यों ले रहे हैं? बहुत सिंपल है। ये एक्सपेरिमेंट अपने बेटे के साथ किया था। मैंने कहा बेटा चॉकलेट्स कैसी लगती हैं? कहता पापा चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पापा आई लव चॉकलेट्स। बेटा डू यू लव चॉकलेट्स? ओके टेल मी बेटा देन वन। इफ आई गिव ए ऑफर, I have 2 packets, one packet contains 2 chocolates and one packet contains 3 chocolates. Which one you take? वो कहता क्या पापा क्या सवाल पूछते, मोर द मेरियर, मैं वही पैकेट लूंगा जिसमें चॉकलेट्स ज़्यादा हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है बेटा 2 चॉकलेट्स आज ले ले, 3 कल ले ले, 2 आज ले ले और 3 कल ले ले। वो बुरा सा मूड बनाता है, नहीं पापा 3 नहीं चाहिए मुझे, 2 आज चाहिए। पहले क्या बोला था? 3 लूंगा, पर लिया कौन सा? क्यों? क्योंकि आज मिलती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने कहा बेटा तूने तो बोला था कि 3 मुझे कल, मुझे 3 चाहिए, मोर द मेरियर, मुझे ज़्यादा चॉकलेट्स लूंगा, तो फिर तुमने ये 2 क्यों ली? तो कहता है पापा आपने कल पे डाल दिया, अब कल पे आप पे भरोसा कैसे करूंगा मैं? तो बेटा बाप पे भरोसा नहीं कर रहा है। यहां हम म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स को भरोसा कीजिए। 5 साल का बच्चा था वो, 5 साल का बच्चा भरोसा नहीं कर रहा है। पर एक आगे मजेदार बात सुनिएगा, और आगे तब समझ में आएगी बात जब मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। एंड आई विल कम बैक टू डिस्कस दिस स्लाइड एट लेंथ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड देयर इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हु हैज वर्कड ऑन दिस, हिज नेम इज वॉल्टर मिशेल फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने 40 साल तक रिसर्च किया उनकी टीम ने। दिस इज कॉल्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, यू कैन गो यूट्यूब एंड फाइंड आउट। और उन्होंने बताया दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वाई यू टेकिंग 100 रुपीज टुडे? इट इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको 100 रुपये तुरंत मिलने में मजा आ रहा है दोस्तों, अच्छा लगता है, तो आप वो नहीं करते हैं जो सही होता है, आप वो करते हैं जो अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं आप? मॉर्निंग वॉक पे जाना अच्छी बात है, पर आप नहीं जाते हैं क्योंकि सुबह सोना अच्छा लगता है। और मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कौन लोग जाते हैं? 80% लोग वो मिलेंगे जिनके सफेद बाल होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब तक अक्ल ठिकाने आ जाती है। और इन्वेस्टमेंट में भी देखिए, इन्वेस्टमेंट में सभी रिच इन्वेस्टर्स जितने भी कामयाब, वॉरेन बफेट सफेद बाल वाला, पीटर लिंच सफेद बाल वाला, जॉर्ज सोरोस सफेद बाल वाला। इन्वेस्टमेंट भी तभी समझ में आता है। हमारी कोशिश है आपको अभी समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, what we need to understand from Walter Mischel's experiment, I'll talk to you later. लेकिन एक दूसरी स्लाइड देखिएगा. Look at this slide. I'll give you 2 options. I'll give you 100 rupees after 100 days. I'll give you 100 rupees after 100 days. And I'll give you 101 rupees after 107 days. आप क्या लेंगे? Please be honest with me. क्या लेंगे? ऑप्शन 2. माय गुडनेस, ऑप्शन 2. आप देखिए, आपने वही किया जो मेरे बच्चे ने किया था. ध्यान से देखिएगा. लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन जो पहले स्लाइड थी, इन प्रीवियस स्लाइड, आई ऑफर्ड यू 100 रुपीज आफ्टर द मीटिंग इज ओवर. आई ऑफर्ड यू 101 रुपीज आफ्टर 7 days. दोनों में फर्क कितना है? 1 रुपया. दोनों में फर्क कितना है? 7 दिन. आपने क्या लिया? 100 रुपया. आगे चलिए. I offered you 100 rupees after 100 days, 101 rupees after 107 days. फर्क कितना है? 1 रुपया. दोनों में फर्क कितना है? 7 रुपया. लेकिन आपका ऑप्शन बदल गया. पहले आपने 100 लिया, अब आपने 101 लिया. कुछ चिंता वाली बात देखी आपने? कुछ चिंता हुई आपको इस बात से? वक्त बदलता है, आपके विचार बदलते हैं. देखिए आप, वक्त बदलता है, मैंने टाइम चेंज किया, आपके ऑप्शंस बदल गए. इसलिए इक्विटीज में कभी तो आपको लगता है पैसा बनेगा, कभी लगता है बन ही नहीं सकता. लगता है कि नहीं आपको? आप एसआईपी शुरू करते हैं और एसआईपीज बंद करते हैं. एंड आई डिड दिस रिसर्च विद माय सन अगेन. अगली बार मैंने उसको ऑप्शन पूछा, बेटा क्या लेगा, 2 चॉकलेट्स की 3 चॉकलेट्स? और वो कहता है पापा पूरा खुलासा करो, ऑफर डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ो आप पहले. तो मैंने कहा बेटा आई विल गिव यू 3 चॉकलेट्स आफ्टर 6 days एंड आई विल गिव यू 2 चॉकलेट्स आफ्टर 5 days. बोलता है पापा इस बार तो 3 लूंगा मैं. क्यों? क्योंकि 6 दिन के लिए भी वेट करना है और 5 दिन के लिए भी वेट करना है. कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों. 5वां दिन आता है. अब मुश्किल क्या है कि 5वां दिन 6ठे दिन से पहले आ जाता है.
5वां दिन छठे दिन से पहले आता है। और जब उसने फैसला किया था 5वां दिन भी कल था और छठा दिन भी कल था, लेकिन 5वां दिन जिस दिन पहले आया उस दिन आज बन गया, और आज बनते फिर बाप पे भरोसा नहीं। तो 5वें दिन मेरे पास आता है, गुड मॉर्निंग पापा, आई वांट टू गिव यू ऑफर, मुझे 2 चॉकलेट्स आज ही दे दो आप। तो 5वां दिन आ गया, छठा आता ही नहीं है उसके लिए। बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा ही होता है, एसआईपी शुरू करते बंद कर देते हैं। 2011 में आप में से 50% लोगों ने एसआईपी बंद कर दी थी, आई हैव ए रिकॉर्ड, एंड 2014 में आपने दोबारा शुरू कर दी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स, वेरी स्मॉल थिंग, दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। जितना बढ़िया आप खुद को समझेंगे उतना बढ़िया आप इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। What was the Walter Mischel's experiment on the first slide? Going back to very important learning there. What they did, the team of Walter Mischel selected some 40 kids. The average age was 4 years. All the 40 kids were kept in isolation in a different cabins, and they were waited till noon. By noon they were hungry. Each of every kid was hungry. Then one experimenter approached them with a marshmallow, एक मिठाई का टुकड़ा. बेटा, are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want to eat this? अब वो बड़ा अच्छी मिठाई है, खाने में अच्छा लगता है, वो खाने रुकता है, रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको मिठाई दे के बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगा, और वापस आने पर मैंने देखा कि तुमने मिठाई नहीं खाई है तो तुम्हें डबल मिठाई मिलेगी। एंड दे स्टार्टेड वीडियोग्राफिंग दीज ऑल 40 किड्स। उसमें क्या किया, कुछ बच्चों ने जल्दी से मिठाई खा ली, कुछ लोगों ने वेट किया, स्ट्रगल किया, और कुछ लोगों ने नहीं खाई। अब भरोसा नहीं था उन साहब को, उनके लिए बता रहा हूं मैं, जिस बच्चे ने मिठाई नहीं खाई उसको किसने कहा था कि एक्सपेरिमेंटर वापस आएगा? ये तो उस बच्चे का चैलेंज था ना कि उस पर विश्वास करे ना करे। वो तो ये कह के गया था कि मैं वापस आऊंगा। मार्केट भी यही कहता है कि मैं रिटर्न दूंगा, पर विश्वास आपको करना है कि देगा कि नहीं देगा। मार्केट इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता है कि वो रिटर्न देगा। दूसरी चीज, एक्सपेरिमेंटर ये भी कह के नहीं गया था कि 1 मिनट में आऊंगा, 2 मिनट में आऊंगा, कि 5 मिनट में आऊंगा, कि 10 मिनट में आऊंगा। ये आपको सोचना है। मार्केट भी कभी नहीं कहता 1 साल में रिटर्न दूंगा कि 2 साल में रिटर्न दूंगा। ये आपको फैसला करना है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट लर्निंग आउट ऑफ इट, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड, हु आर द किड्स हु आर सक्सेसफुल इन नॉट ईटिंग दैट मिठाई, मार्शमेलो। जिन्होंने मिठाई नहीं खाई और जिन्होंने मिठाई खाई, उनकी सबकी फाइल खुल गई, एंड दे फॉलो द लाइफ ऑफ दिस किड्स फॉर नेक्स्ट 40 years. You know what their team observed after 40 years? Every 5 years they visited their home to understand how the progress is going in their life. What they have observed, 40 kids में से जिन बच्चों ने मिठाई नहीं खाई वो जिंदगी में ज़्यादा कामयाब थे, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ थी, पेशेंस। The 3 important things: ट्रस्ट, डिसिप्लिन, पेशेंस। ट्रस्ट भी आपको करना है, डिसिप्लिन भी आपको रखना है, पेशेंस भी आपको रखना है। तीनों चीज़ें आपको रखनी है। पर वो पेशेंस रखा कैसे उन्होंने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट मिस्टर मिशेल सेज। वाल्टर मिशेल सेज दैट जिस बच्चे ने मिठाई नहीं खाई वो कामयाब क्यों हुआ। मान लीजिए मेज है और इस पर मिठाई रखी है, ये मिठाई रखी है, उसी बच्चे ने मिठाई खाई जो मिठाई को देखता रहा, और जिसने मिठाई नहीं खाई वो मेज से दूर चला गया, टू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द रूम, और वहां पर इधर देखता है, उधर देखता है, खेलता है, कूदता, पर मिठाई को नहीं देखता है, क्योंकि देखता है तो लालच होता है। तो कामयाब होने का तरीका क्या था? मिठाई को मत देखो। 20 साल से म्यूचुअल फंड में हूं, मैंने क्या देखा है, जो रोज एनएवी देखता है कभी रिटर्न नहीं कमाता है, जो रोज स्टॉक्स के भाव देखता है कभी रिटर्न नहीं कमाता है। तो क्या सीखना उन बच्चों से? रोज भाव नहीं देखना है। रोज भाव देखते हो तभी वॉलेटिलिटी होती है, तभी दिमाग ऊपर नीचे होता है। और रोज भाव क्यों बदलते हैं? क्योंकि न्यूज़ आती है। ना न्यूज़ देखिए ना एनएवी देखिए, आप कामयाब इन्वेस्टर हो जाएंगे दोस्तों। वेरी सिंपल है, राइट? वेदर यूल बी एबल टू डू दिस, क्या आप कर पाएंगे, ये आपकी चुनौती है। एक और आखिरी तस्वीर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगेन द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। दिस इज फ्रॉम द पर्सन कॉल्ड डेनियल कानेमैन, एमस ट्रेवस्की। डेनियल कानेमैन, उनके दोस्त एमस ट्रेवस्की को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, एंड दे आर द पीपल हु हैव चेंज्ड द इकोनॉमिक्स फॉर एवर। पहले इकोनॉमिक्स को साइंस मानते थे, अब हम बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। इट्स नॉट प्योर साइंस, राइट? और अब तो बिल्कुल ही साइंस नहीं है दुनिया की जो हालात है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है? किसी को मालूम ही नहीं क्या करना है। अब आप देखिए कि उन्होंने क्या रिसर्च किया और क्या बताया उन्होंने। लेट अस प्ले दिस गेम। अगेन देयर आर 2 ऑप्शंस, लुक एट दिस 2 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, we'll play a game where you will get 1,000 rupees gain
100% गारंटीड सर्टेन, इट्स सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन कि आपको 1000 रुपये का फायदा होगा. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, मैं एक सिक्का उछालूंगा, अगर हेड आया तो 1000 की जगह आपको 2000 रुपये मिलेंगे, और अगर टेल आया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे? ए. कितने लोग बी लेंगे? अब ये लोग जुआ खेल रहे हैं फिर से 8-10 लोग. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आई विल चेंज नथिंग. तो मोस्ट ऑफ यू हैव टेकन ए. ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा. इमेजिन दैट यू फेस द फॉलोइंग चॉइस. द चॉइस नंबर 1, देर इज अ श्योर लॉस ऑफ 1000 रुपीज. आपको 1000 रुपये का नुकसान होगा ही होगा, आप 1000 रुपये के नुकसान से बच नहीं सकते. और ऑप्शन बी है, मैं एक सिक्का उछालूंगा, अगर हेड आ गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप 1000 रुपये के नुकसान के दर्द से बच जाएंगे, लेकिन टेल आ गया तो आपको नुकसान होगा 2000 रुपये का. अब आप क्या लेंगे? ए लेंगे कि बी लेंगे? प्लीज रेज हैंड्स. कितने लोग बी लेंगे और कितने लोग ए लेंगे? फर्स्ट ए, कितने लोग ए लेंगे? सम पीपल इज टेकिंग ए. कितने लोग बी लेंगे? माय गुडनेस, पिछली बार बी कितने लोगों ने लिया था? पिछली बार तो पिछली बार कम लोग थे, इस बार ज्यादा लोग हैं. क्या देखा आपने? इसमें से रिस्की कौन सा है? दोनों प्रपोजिशंस में ए एंड बी, विच वन इज सर्टेन एंड विच वन इज रिस्की? इन द बोथ द स्लाइड्स, बोथ द स्लाइड्स, in both the slides. Look at this. In the slide first with the gain, कुछ नहीं किया मैंने, gain को change किया है, gain को loss किया है. Go to the first slide, gain slide. Most of you have taken A, right? Most of you have taken A. Which one is certain, A or B? A is certain. Which is uncertain? B. Uncertain means risky. So you're not taking risk. आप risk नहीं ले रहे हैं, आप certainty के साथ जा रहे हैं. Come to B. बी में बहुत से लोगों ने, दूसरे वाले स्लाइड में देखिए, बी में बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया. बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया, किसके साथ? अनसर्टेनिटी के साथ. तो आप क्या कर रहे हैं? आप नुकसान से बचने के लिए रिस्क ले रहे हैं. आप नुकसान से बचने के लिए रिस्क ले रहे हैं, फायदे से आप रिस्क नहीं ले रहे हैं. इसीलिए आपने नुकसान वाले शेयर्स को रखा था और फायदे वाले शेयर्स को बेचा था. डेनियल कानेमैन ने ये बात हमें समझाई कि इंसान रिस्क लेता है लॉस से बचने के लिए, जबकि रिस्क लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बढ़ाने के लिए. हम उल्टा करते हैं दोस्तों. एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस. कितनी ज़बरदस्त बात है, राइट? जाके देखिएगा दोस्तों, आपके साथ वही होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं. जंगल से आप जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भगवान ज़्यादा है कि भूत ज़्यादा है? बताइए, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, भगवान की कि भूत की? किसकी ज़्यादा है? कण कण में कौन है? हर जगह कौन है? ओमनी प्रेजेंट कौन है? कभी आपने सुना है घोस्ट आर ओमनी प्रेजेंट? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. पर जंगल के अंदर जब अंधेरा हो जाए तो डर लगता है, तो नज़र कौन आता है? भूत नज़र आता है. इन्वेस्टमेंट में नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है, पर नुकसान वाले ज़्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो नुकसान के बारे में ही सोचते हैं. अभी भी आप वही सोच रहे थे ना कि नुकसान से बचे कैसे. आपको इन्वेस्टमेंट में काम नुकसान से बचने का नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट में काम रिटर्न को बढ़ाने का स्ट्रेटेजी रिटर्न बढ़ाने की होनी चाहिए. स्ट्रेटेजी नुकसान से बचने की नहीं होनी चाहिए. वॉरेन बफेट ज़रूर कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाई कि नुकसान ना हो, पर उसके अंदर भी स्ट्रेटेजी यही भी निकल के आती है कि उनको फ़ायदा हो. प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, इफ़ यू हैव सम टाइम, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, आई कांट डिस्कस मच ऑन दिस स्लाइड, बट आप कभी जाइएगा और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको आप देखिएगा कि प्रॉस्पेक्ट थ्योरी आप डालिए, और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी डालने के बाद में जल्दी से आपको ये बात समझ में आएगी कि आप क्या गलती करते हैं. एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, वेन एवर यू डू इन्वेस्टमेंट्स, प्रिपेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट, डोंट प्रिडिक्ट द इन्वेस्टमेंट. हमारी आदत है प्रिडिक्शन की, मार्केट कैसा लगता है, ये सबसे ख़राब सवाल है. किसी के पास जवाब इसका नहीं है, और मज़ेदार बात है जवाब देने वाले मिल जाते हैं आपको, है ना. सुराना साहब का पहली स्लाइड मुझे याद आ रही है. मुझे कोई 2000 रुपये दीजिए, मैं उस स्लाइड पे बात करना चाहता हूँ. देंगे आप मेरे को 2000 रुपये? एनीबॉडी? I'll give you back. I need 2000 rupees. किसी के पास है? नकद है नहीं, नोटबंदी ऐसी है बॉम्बे में, किसी के पास नहीं है. है आपके पास? देखिए उतने दिल वाला निकला वहां पर एक, ये निकला सर, देखिए 2000 रुपये. What was the first slide of सुराना साहब? You remember the first slide? First slide कौन सी थी? प्राइस वर्सेस वैल्यू.
और इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? जब वैल्यू प्राइस से ज्यादा हो, राइट? लुक एट दिस 2000 रुपीज. व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस नोट? व्हाट इज द प्राइस? 2000. What is the value? 2000. So price is equal to fair value. Fair valuation. It is fairly valued. अब ये नोट मेरा है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, ठीक है, दे दूंगा साहब. हैं? 2000 का नोट है दोस्तों, प्राइस है 2000, वैल्यू है 2000. मैं आपको ये नोट 1600 रुपए में देने के लिए तैयार हूं. क्या आप लेंगे? यस? पक्का? देख लीजिए आप लोग कैसे, पेशेंस तो है ही नहीं. आपने यस क्यों बोला? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने नहीं लिया तो दूसरा ले जाएगा. इसलिए खबर आती, शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं. देखिए होना क्या चाहिए था, एज ए रैशनल इन्वेस्टर आपके मन में क्या बात आनी चाहिए थी? वाई वैल्यू इज लेस देन प्राइस, या वाई प्राइस इज लेस देन वैल्यू. मैंने जैसे ही प्राइस कम की वैल्यू से, आप उसको खरीदना चाहते हैं, पर दोस्तों खतरा क्या है? अगर ये काउंटरफीट हुआ तो दोस्तों उसी कंपनी का प्राइस कम होता है जिसके वैल्यूएशंस में खतरा होता है दोस्तों, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी. नंबर 1. नंबर 2, और ज़्यादा खतरा सुनिएगा आप, आपने तुरंत खरीद लिया बिना रिसर्च किए कि ये मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना. चिंता नंबर 1. चिंता नंबर 2, आप में से कुछ लोग रिसर्च करते हैं, लेट अस वेट एंड फाइंड आउट, और आप पता करते हैं कि नकली है तो आपको नुकसान हो गया, और आप पता करते हैं तो मालूम चलता है ये नकली नहीं है. अब क्या होगा बताइए? और वो बाजार में अभी भी अवेलेबल है. अब बताइए क्या करेंगे आप इसको खरीद लेंगे. आप टीवी देख रहे हैं, टीवी खरीदने का, टीवी देखने का और एक और खतरा बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा. आप टीवी देख रहे हैं, उस वक्त आपका मैनेजर आके खबर देता है कि रिसर्च पूरा हो गया है और ये नोट असली है, तो वैल्यू ज्यादा है, प्राइस कम है, हमें खरीद लेना चाहिए. आप मन बनाते हैं खरीदने का, पर उसी वक्त टीवी पे वो एक्सपर्ट आता है जिसको आप रोज देखते हैं, और वो एक्सपर्ट आता है, कृष्ण शर्मा एज ए टीम अजूर के साथ मिलकर एक 2000 रुपये का नोट 1600 में बेच रहा है. मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया के हालात बहुत ख़राब है. ट्रंप साहब ने फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ गए हैं, विदेशी भागने वाले हैं. ये जो नोट है 1600 की जगह 3 महीने में 1200 का मिलेगा. अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप इसको नहीं खरीदेंगे. उस एक्सपर्ट को अगर मालूम होता ना कि 1200 होने वाला, तो आपको बताता क्यों? बताइए मेरे को आप. उसको भी मालूम नहीं है. प्राइस वर्सेस वैल्यू झगड़ा जबरदस्त है दोस्तों. ये झगड़ा फंड मैनेजर को करने दो, उन पे डाल दो सुराना जी पे. आप तो अपना ध्यान रखो साहब. वैल्यू कैसी है और प्राइस कैसी है, स्टॉक्स कैसा है, आगे क्या होगा, क्या चुनना चाहिए, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, सब चिंता उन पे डाल दो. आउटसोर्स कर दो ये चिंताएं. खुद की चिंता करो कि मुझे चाहिए क्या और मुझे करना क्या है. द मोमेंट यू डू दिस, आप एक एनलाइटेड इन्वेस्टर बनते हैं. तो यू डोंट प्रेडिक्ट, यू प्रिपेयर. व्हाट इज मेंट बाय प्रिपरेशन? प्रिपरेशन का मतलब यह है कि देयर इज अल्टरनेटिव, देयर आर मेनी आउटकम्स, देयर इज नॉट सिंगल आउटकम. इट्स नॉट साइंस, इट्स आर्ट. एक खतरा क्या है कि जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है बाजार में वैसा ही होगा. देयर आर अल्टरनेटिव आउटकम्स. सो हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, ये बात हमें समझने की कोशिश करनी है. प्रिपरेशन मीन्स व्हाट? लुक एट दिस. प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है? टेक द केस ऑफ युधिष्ठिर. महाभारत में एक व्यक्ति है युधिष्ठिर, है कि नहीं, है ना? उसको दुर्योधन ने बोला आओ जुआ खेलते हैं. क्यों बोला था? क्योंकि युधिष्ठिर जुए का सबसे अच्छा खिलाड़ी था, वर्ल्ड चैंपियन. तो फिर दुर्योधन ने जुआ खेलने को क्यों बोला? ही हैज ए सपोर्ट ऑफ शकुनी. शकुनी ने बोला मैं उसको हरा दूंगा. दैट वॉज द कॉन्स्पिरेसी. तो युधिष्ठिर को जब ऑफर आया तो युधिष्ठिर के पास में 3 ही ख्याल आए. मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा, मुझे नहीं मालूम मैं हारूंगा या जीतूंगा. तो जब उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो उसने मन में क्या होगा? मैं जीतूंगा. तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, देयर आर 3 कंडीशंस. मार्केट्स विल राइज, मार्केट्स विल फॉल. आई डोंट नो मार्केट्स विल राइज और फॉल. तो आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो मन में क्या होता है? मार्केट्स विल राइज. तो आप युधिष्ठिर जैसे सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा क्योंकि मार्केट्स विल राइज, और मार्केट्स गिर गए तो आप क्या करते हैं? उल्टा हो गया, जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो नहीं हुआ. सो व्हाट यू विल डू, अंडरस्टैंड दिस. युधिष्ठिर खेलने गया ये सोच के कि मैं जीतूंगा, पर वो हार गया. अब क्या होगा बताइए? उसका स्ट्रेस बढ़ेगा कि कम होगा?
उसका स्ट्रेस बढ़ेगा कि कम होगा? देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड मेरिशो डगलानी, बहुत शानदार वो बात करते हैं। क्या बात करते हैं मॉरिशो डेल्गाडो? क्या बात करते हैं सुनिएगा। स्ट्रेस में आप वो करते हैं जो आपकी आदत होती है, आप वो नहीं करते हैं जिसका आपको ज्ञान होता है। स्ट्रेस में आप वो करते हैं जो आपकी आदत होती है, वो नहीं करते हैं जो आपको ज्ञान होता है। सुराना साहब समझा के जाएंगे कम वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर जब वैल्यूएशन कम होती है, जब कीमत कम होती है तो खबर खराब होती है दोस्तों, और जब खबर अच्छी होती है तो कीमत खराब होती है, और आपको रिटर्न मिलता है कीमत पे, खबर पे नहीं मिलता है। तो वैल्यूएशन तभी अच्छे होते हैं जब आपके सेंटीमेंट खराब होता है, राइट? इस केस में देखिए, स्ट्रेस, जब बाजार गिरता है तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है तो आप वो नहीं करते हैं जो करना चाहिए, इक्विटीज़ में डालना चाहिए, आप वो करते हैं जो आपकी आदत है, और आपकी आदत क्या है? डिपॉजिट्स, इजंट इट? 15 साल से आप इक्विटी मार्केट को देख रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं, पर डिपॉजिट को 70 साल से देख रहे हैं ना। आपके पिताजी भी डिपॉजिट्स करते थे, दादाजी भी डिपॉजिट्स करते थे। हमारे खून में क्या है? डिपॉजिट्स। तो आदत में क्या है? डिपॉजिट्स। अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल। तो हारने लगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हारने लगा तो उसको करना क्या चाहिए था? ज्ञान क्या कहता है? खेल को छोड़ दो, पर उसने क्या किया? दाम को बढ़ा दिया। ध्यान से समझिए, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का राजा, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर, सबसे ज्ञानी आदमी पांडवों में, सबसे ज्ञानी आदमी कौरवों में, वो इतनी गलत बात करता है। जो इतना ज्ञानी आदमी है वो इतना अधर्म का काम करता है कि अपनी बीवी को दांव पे लगा देता है, क्योंकि वो जुआरी है, आदत से जुआरी है। शकुनी ये बात जानता था। आपको जब आदत किसी बात की होती है तो ज्ञान काम नहीं आता है। लेकिन बिगर प्रॉब्लम क्या है समझिए, उसने प्रिपरेशन नहीं किया था। प्रिपरेशन कैसे नहीं किया था? उसने खेलने से पहले ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं हारूंगा तो क्या करूंगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू whenever you do investment. If your investment doesn't perform the way you wanted, तो मेरे लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी क्या है? आपके पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी नहीं होती है, इसलिए आप फैसला गलत करते हैं। तो इस गलत फैसले से बचने के लिए आपको करना क्या है? ध्यान से समझिए। पूरे महाभारत में आप देखिए कि जब भी संकट आया, जब भी परेशानी आई, जब भी तकलीफ आई, ये पांडव हमेशा भाग के एक सलाहकार के पास गए। क्या नाम था? कृष्ण। ये अकेला प्रसंग है जिसके अंदर युधिष्ठिर को इतना घमंड था अपनी जुआ खेलने की कला में, इतना कॉन्फिडेंट था, वो प्रिडिक्शन किया ना उसने, मैं तो जीतूंगा। ये अकेला प्रसंग है जहां पर युधिष्ठिर बिना सलाहकार के चला गया, बिना सलाहकार के चला गया। कल्पना करें अगर कृष्ण साथ में जाता तो क्या होता? महाभारत ही नहीं होती दोस्तों, क्योंकि कृष्ण कभी उसको द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाने देता। तो सलाहकार का काम क्या है? स्कीम बताना नहीं है, रिटर्न दिलाना नहीं है। आप गलत काम न करें वो हैं दोस्तों। और आप गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी आदत में इक्विटीज है ही नहीं। कितनी मजेदार बात है दोस्तों। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। You can't predict, but you can prepare. And prepare for these markets, that markets will fall at short intervals. If you need to understand this, go to the US markets. Look at the US markets. We have a history of US market for 100 years. You can see the 100 years chart. There is 50% chances of markets to fall and 50% chances of markets to rise. So if you are in the market for the next 15-20 years, at least in 20 years, there will be 7-8 years in India when the markets will fall. Why I am saying 7-8 years, not 50%, because India is a growing country. So this is the small slides, friends. I just want you to discuss with you. It's a very big subject. Time is limited, but will you permit me 10 more minutes? Or okay, 2 more minutes I'll take. 2 more minutes I will take. I'll show you one important slide, friends. I have discussed with you the managing wealth, but let me talk with you the source of wealth. From where the wealth comes? The wealth comes due to only 3 sources. And what are these 3 sources? उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के हालात क्या हैं। दुनिया के हालात देख लीजिए। दुनिया की वेल्थ कम हो रही है, वेल्थ जनरेशन कम हो रही है, ग्रोथ ऑफ वेल्थ जनरेशन। जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया की क्या हो रही है? लगातार कम हो रही है, राइट? क्यों कम हो रही है? रीजंस क्या है? द 3 फैक्टर्स व्हिच गिव्स ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आर मिसिंग इन द वर्ल्ड। व्हाट आर दिस 3 फैक्टर्स? लुक एट दिस 3 फैक्टर्स। और बिफोर दैट आई विल शो यू वन मोर स्लाइड। दुनिया की ग्रोथ रेट्स कम हो रही है पर इंडिया की बढ़ रही है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing to need to understand. I'll use the words here used by Rajan Raghuram, the ex-governor of RBI. On this slide, his words are apt. He used to say, India is an island of peace in an ocean of turmoil. India में growth rates बढ़ रही हैं और दुनिया में
कम हो रही है। मैंने दुनिया की बात आपसे क्यों की, ताकि आपको सुख मिले। नोटबंदी में सबको दुख हुआ, पर फिर भी मोदी जी को वोट मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि नोटबंदी में तब भारी सुख मिला जब ये बात समझ में आई मेरे से ज़्यादा वाट उसकी लग रही है। तो अगर मैं आपसे केवल ये कहूंगा इंडिया अच्छा कर रही है, आपको मजा नहीं आएगा। इंडिया तब अच्छा कर रही है जब दुनिया खराब कर रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने भी समझाया हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम ईश्वर है कि नहीं है, पर अगर ईश्वर दुनिया में है तो जरूर हिंदुस्तानी होगा। हमारे यहाँ सब बढ़िया चीजें हो रही हैं, और ये बढ़िया चीजें क्या हैं? 3 चीजें बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच गिव्स ग्रोथ, सो दैट यू हैव ए ट्रस्ट ऑन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और ये 3 चीजें क्या है? अ कंट्री ग्रोज इफ दीज 3 थिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट कंट्री: इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, ये 3 चीजें अगर आपके पास में नहीं है दोस्तों, तो ग्रोथ नहीं आ सकती। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ये तीनों चीजें हैं। दुनिया में पॉपुलेशन कम हो रही है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है। व्हाट इज पॉपुलेशन? 2 सप्ताह पहले एक न्यूज आई थी, आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं न्यूज पढ़ने के लिए मना करता हूं, देखने के लिए, पढ़ने के लिए मना नहीं करता हूं, है ना। रात को वैसी खबर पढ़िए, मजा आता है, so that you don't react. What was the news? The news was average age of India is 25 years. So what is so important in average age of 25 years? Very important. I will rearrange the sitting arrangement of this hall. What I will do, I will ask people with more than 25 years to sit here, and I'll request people less than 25 years to sit here. एक स्मॉल चेंज मैंने किया। तो यहाँ कौन लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है? यहाँ कौन लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है? धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी सैलरीज वेजेस इनकम बैंक बैलेंस किसका ज़्यादा होगा? जिसकी उम्र 25 से ज़्यादा है कि जिसकी उम्र 25 से कम है? जिसकी उम्र 25 से ज़्यादा है। तो पैसा इनके पास ज़्यादा होगा। अब मुझे आप बताएंगे मोबाइल किसका महंगा होगा? कुछ बात समझ में आई? हिंदुस्तान की एवरेज एज हो गई है 25। हिंदुस्तान में बच्चे ज़्यादा हैं और बड़े कम हैं। इन बच्चे लोगों का खास काम क्या होता है? पहले खर्चा बाद में कमाई। हिंदुस्तान में हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया है? पहले कमाई। ये उन्होंने सीखा है पहले खर्चा बाद में कमाई। बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ये आपको ग्रोथ देंगे। स्पेंडिंग बढ़ रही है। स्पेंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दुनिया के आधे बच्चे आपके पास हैं दोस्तों, इसलिए ग्रोथ रेट्स आपकी कम होने से रही। दुनिया की हालत क्या है? 30 साल से दुनिया की हालत क्या है, जल्दी से आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, एक तस्वीर और देखिए आबादी में। अगेन यूएस की स्लाइड है, मेरी स्लाइड बनाई नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ये गोरे की स्लाइड बनाई हुई है ताकि विश्वास आपको ज्यादा हो। यू विल नॉट बिलीव ऑन मी। ये यूएसए की स्लाइड है, और यूएसए क्या कहता है कि अगले 15 सालों में मजदूर केवल हिंदुस्तान देगा। दुनिया में बच्चे है ही नहीं, तो मजदूर कहां से जाएंगे? हिंदुस्तान से जाएंगे, राइट। और यहां मेरी एक चिंता है, और जबरदस्त चिंता है दोस्तों। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, डू रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड आई विल रिक्वेस्ट टीम अजूर आल्सो, इंक्लूड रिटायरमेंट प्लानिंग इन योर एडवाइस। Wealth creation is this, it should not be the only goal of our life. Retirement planning is very important. If you go to Europe, particularly Europe, and you visit parks in the morning, you will find old couples there. Ask them, if God will give an opportunity to you to live your life again, what you will do? Most of them will reply you, if God gives this opportunity, I'll live my life again, I will do retirement planning. Half of the old couples in Europe are dependent on government. Friends, do retirement planning. And this picture is very scary. India will become the largest human resource exporter in next 15 years. सबसे ज़्यादा human capital को export करेगा इंडिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, बाप के 2 बच्चे होते हैं, एक लायक एक नालायक। तो आपके पास भी 2 बच्चे हैं, एक लायक है और एक नालायक है। जो लायक बच्चा है उसको दुनिया ले जा रही है, देख लीजिए आप। जितना लायक बच्चा होगा उतना आपसे दूर जाएगा। नालायक तो छोड़ के जा नहीं सकता, नालायक तो छोड़ के। एंड इफ यू हैव ओनली वेल्थ अकाउंट, तो इस्तेमाल कौन करेगा? नालायक करेगा। रिटायरमेंट अकाउंट वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट अकाउंट एंड वेल्थ अकाउंट? वेल्थ अकाउंट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, पर रिटायरमेंट अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली बाय यू। आपके बच्चे भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। Don't do this mistake, friends. Plan your retirement tomorrow itself. You can delay wealth creation goal, but you can't delay your retirement goal. That's very important.
सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन्फ्लेशन. आप देख सकते हैं दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बहुत कोशिश की जा रही है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए. मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, पर इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखिए आप जो भी खर्चा करते हैं आप तभी करते हैं जब आपके मन में महंगाई का डर होता है. दोस्तों मंदी तभी आती है जब महंगाई का डर खत्म हो जाता है. मेरे पास समय नहीं है, मैं विस्तार से इसके बारे में बात नहीं करूंगा, पर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इन्फ्लेशन. एंड इंडिया इज ए कंट्री वेयर वी कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडिया में काबू में हो गया है. Third thing is very important, and this is diminishing productivity growth in the world over. Look at this chart. I love this chart the most. India is the only country among major countries जहाँ पर productivity efficiency बढ़ रही है, बाकी सभी countries में productivity efficiency कम हो रही है. Now, all these three factors put together gives India an opportunity to become an island of peace in an ocean of turmoil, friends. This is the reason that why India will grow. Enjoy this moment for next 15-20 years, being the citizen of fastest growing free market democratic economy. हिंदुस्तान दौलत बनाएगा, आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे depends on you, right? वो फैसला आपको करना है. Try to manage your wealth, understand yourself. जितना आप खुद को समझेंगे उतना बेटर आप इन्वेस्टर बनेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जय हिंद. नमस्कार. थैंक यू. Talk by Mr. Krishan Sharma. I'm sure he has shared a lot of pearls of wisdom. You know, when we go back home, I think we can think, you know, and if we can just implement 2 or 3 of what he has said, I think our job will be done. You know, the coming here will be worth actually.